In all simple titration, that is redox titration and acid base titration or back titration, we use indicators. Okay, so indicators are weak organic acids or base which have color. So when reaction is completed, the color will change. When color will change, we will think that reaction is completed and will stop adding the reagent from the burette. So indicator will never give you exact endpoint of the reaction. Indicator always give you approximate endpoint of the reaction. Okay. So whatever indicator you use, that will give you approximate endpoint. Suppose reactant itself is indicator, then you will get exact endpoint of the reaction. So any reaction wherever reactant act as indicator, that will give you exact endpoint, means 100% accurate endpoint of the reaction. If you do experiment without having any error, then 100% error free result will come. But if indicator is added from outside, if reactant is not indicator, then what will happen? Then result will never be 100% accurate. Result will be having some error. Okay, because indicator will give you approximate endpoint, means it will show the endpoint of reaction just after the completion of reaction or just before the completion of reaction. So any indicators used will not give you exact endpoint. So that's why we use iodimetry titration. This is the best and this is the most famous titration, iodimetry and iodometry. What is iodimetry titration? Iodimetry titration means, see, the titration between I2 and hypo solution Na2H2O3. So titration between I2 and NH2H2O3 is known as iodimetry titration. Means the liberated iodine is titrated with sodium thiosulfate. So sodium thiosulfate is known as hypo. So this is known as hypo. This is sodium thiosulfate. Okay. So iodine is titrated with this. When iodine is titrated with this, the reaction will give you NaI plus Na2S4O6. So this is called sodium tetrathionate. This name is sodium tetrathionate. So this is sodium thiosulfate. This name is sodium thiosulfate. Thiosulfate. And this titration is done between I2 and hypo. This is also known as hypo. So sodium thiosulfate, if you see average oxidation number of sulfur, so it will be coming average oxidation number of sulfur is 2.0. Okay. Sodium thiosulfate average oxidation number of sulfur is 2.0. And sodium tetrathionate average oxidation number of sulfur will come 2.5. So the change in oxidation number is 0.5. The change in oxidation number is 0.5, 2 to 2.5. So 0.5. So if change is 0.5, N factor will be 0.5 into, in 1 mole 2 sulfur are there, 0.5 into 2 is equal to 1. So its N factor is 1. Okay. So in N factor you see average oxidation number, don't see exact oxidation number. So you can check average oxidation number, no problem. So now in case of I2, I2 oxidation number is changing from 0 to -1. The change in oxidation number is 0 to -1 means 1. N factor is 1 into 2 because in 1 mole 2 are there, 1 into 2. This N factor is 2, this N factor is 1. That's why this coefficient is 1, this coefficient is 2 in the valence equation. So this is the titration, means how the titration is done. So in conical plus you will be getting iodine liberated. Okay, here iodine liberated. Iodine, you know that volatile, and the iodine liberated can come out. Iodine color is violet. And
From butyrate you can add hypo solution, that is sodium thiosulfate, Na2H2O3. So initially iodine color is violet. Okay. So when you add sodium thiosulfate, initially the reaction will be between hypo and iodine. Since iodine is excess, initially you have taken iodine, so this is excess, and slowly drop by drop you are adding hypo. So when you drop by drop you are adding hypo, iodine is left over. It's because it is excess initially. So when you add sodium thiosulfate, slowly drop by drop, iodine will be left over. So if iodine is left over, its color will be there. But whenever iodine is completely consumed, if keep on adding hypo, so if you keep on adding hypo, hypo will be reacting with I2. So when hypo is reacting with I2, then slowly iodine is consumed. So keep on adding hypo solution. So when you keep on adding hypo solution, iodine is consumed. When iodine is consumed slowly, time will come where iodine will be no more left. When iodine is completely consumed, then suddenly the color will change. So iodine is violet color, suddenly color will change to colorless, because except iodine all are colorless. Hypo is colorless, sodium tetracyanate is colorless, sodium iodide is also colorless. So when reaction is over, suddenly the color will disappear. Color will be colorless. So you will understand the reaction is just complete. So then you will stop adding hypo solution. And you will find how much hypo is added in this titration, and molarity of hypo, and iodine how much volume was there, molarity you can compare. So this is the titration. But one problem is that iodine is volatile substance, isn't it? So if you do titration, while doing titration, you will consume 1 to 2 minutes, or it may take more time. So by that time, iodine will be evaporating. Some iodine will be escaping because the container will be open now. When you add this solution, container is open. So iodine is escaping. So exact titration may not be done. तो if you make it closed container, you can do that. इसमें क्या करो, एक कर्क रख दो, कर्क में एक होल कर दो. हाँ हाँ, क्लोज करने से क्या होगा ना, ये जो एयर रिप्लेसमेंट होता है ना, हाँ, हाइपो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो एयर रिप्लेसमेंट, हाँ, एयर रिप्लेसमेंट होता है, वो ठीक से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन फ्लो होगा ना, तो उसको एयर, यहाँ पे जो एयर है वो रिप्लेस होना है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ठीक ठाक नहीं होगा. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग और एक काम कर सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्च ऐड कर सकते हैं. स्टार्च, ओके. तो स्टार्च क्या है, स्टार्च आयोडीन के साथ कंबाइन करके आयोडीन को एब्जॉर्ब कर देगा, आयोडीन को अरेस्ट कर देगा. तो स्टार्च ऐड करने से स्टार्च आयोडीन को एब्जॉर्ब कर देगा और आयोडीन को एवापोरेट होने नहीं देगा, सब्लिमेट होने नहीं देगा. आयोडीन सब्लिमेट हो जाता है, तो आयोडीन जब स्टार्च ऐड करेंगे, आयोडीन उसका सरफेस में रहेगा और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा. आयोडीन एक भी मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन एवापोरेट नहीं होगा. तो स्टार्च ऐड करना है इस सॉल्यूशन में. स्टार्च यू हैव टू ऐड. इंडिकेटर इज आयोडीन, बट यू हैव टू ऐड स्टार्च इन ऑर्डर टू रिस्टोर आयोडीन, इन ऑर्डर टू अरेस्ट आयोडीन. तो स्टार्च ऐड करने से स्टार्च आयोडीन के साथ एक वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसका कलर है डीप ब्लू ब्लैक. इसका कलर है डीप ब्लू ब्लैक. ठीक है. तो स्टार्च ऐड नहीं करने से आयोडीन उड़ जाएगा. तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, स्टार्च ऐड कर देंगे. स्टार्च ऐड करने से स्टार्च प्लस आयोडीन डीप ब्लू ब्लैक हो जाएगा. स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको एब्जॉर्ब कर देगा. स्टार्च प्लस आयोडीन थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, वायलेट से डीप ब्लू ब्लैक हो जाएगा. So then you keep on adding hypo. When you add hypo, there is no problem. Hypo can react with I2. So starch absorbed I2 can easily react with iodine, because this is not very strong complex. This is a very weak complex. So iodine react करता रहेगा, कोई problem नहीं है. इसमें iodine hypo से react करता रहेगा.
तो इसका जो कलर होगा वो कलर चेंज होगा डीप ब्लू ब्लैक, डीप ब्लू ब्लैक से कलरलेस हो जाएगा। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा ये हो जाएगा कलरलेस। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने से आयोडीन खत्म हो जाएगा। आयोडीन फिनिश हो गया, तो आयोडीन फिनिश हो गया, स्टार्च का कलर तो कलरलेस होता है, NaI कलरलेस, सोडियम टेट्राथायोनेट आल्सो कलरलेस, हाइपो आल्सो कलरलेस। तो सडनली कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस हो गया तो हम लोग समझेंगे कि रिएक्शन कंप्लीटेड। ओके, so this reaction will give you 100% accurate result. So that's why this is the better titration than the previous whatever you have done. So this is known as iodimetry. So in this titration, what equation we can use? We can use equation gram equivalent of I2 जिसका n factor 2 है is equal to gram equivalent of Na2H2O3 which n factor is 1. Okay, so because this titration is iodine and hypo, so you can use this formula to express this iodimetry titration. Clear है? So next is iodometry. Iodometry. What is iodometry? ना इसमें आयोडीन इंडिकेटर है, आयोडीन सेल्फ इंडिकेटर है, तो इसीलिए अगर हम टाइप हाँ ये सब टाइट्रेशन में एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और एक टाइट्रेशन है देखो, हाँ पर्टिकुलर केस हो गया। हाँ, तो अगर केमेनोफोर वर्सेस मोर सॉल्ट या Fe2+ टाइट्रेशन करेंगे, देखो ये टाइट्रेशन भी एक्यूरेट रिजल्ट देगा। केमेनोफोर वर्सेस Fe2+, ठीक है, ये टाइट्रेशन में केमेनोफोर इज ए इंडिकेटर, केमेनोफोर इज पर्पल कलर। ओके, तो रिएक्शन होने के बाद ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये टाइट्रेशन में भी, इन दिस टाइट्रेशन आल्सो केमेनोफोर acts as self indicator and the result will be accurate result. Okay, so wherever self indicator is used means reactant acting as indicator, the result will be accurate. Okay, Fe2+ लाइट ग्रीन, लेकिन सॉल्यूशन उसका इतना ग्रीन नहीं दिखेगा। Fe2+ सॉल्यूशन जो है वो फेंट ग्रीन। ओके, तो केमेनोफोर पर्पल है, वो डोमिनेट करेगा, Fe2+ का कलर से डोमिनेट करेगा, तो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। नहीं, केमेनोफोर Fe2+ टाइट्रेशन वो अलग है, वो रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। इसमें सेल्फ इंडिकेटर का एग्जांपल मैंने दिया, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन, स्कूल का प्रैक्टिकल में होगा ये टाइट्रेशन। तो नेक्स्ट यू राइट आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री क्या है? आयोडोमेट्री is a titration in which there is a indirect way of आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री मतलब क्या है? आयोडोमेट्री का अंदर आयोडीमेट्री एक पार्ट है, ठीक है। आयोडीमेट्री जो है आयोडोमेट्री का अंदर रहेगा। आयोडोमेट्री क्या है? तो आयोडोमेट्री देखो, सपोज क्या करो, केमेनोफोर ले लो जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। उसको क्या करो, KI से रिएक्ट कराओ। तो केमेनोफोर KI से रिएक्ट कराओ, केमेनोफोर अगर KI से रिएक्ट कराओगे तो एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट आएगा K2SO4 और आएगा
MnSO4 और K2SO4 MnSO4 I2 और वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस ऑफ Ki दिए, इसको हम एक्सेस दे दिए, तो I2 निकला यहां से। और ये जो I2 निकला वो I2 को टाइट्रेट करो Na2H2O3, ये टाइट्रेट करो। मतलब इस रिएक्शन से जो लिबरेटेड आयोडीन है उसको क्या करना है, हाइपो के साथ टाइट्रेट करना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, Na प्लस Na2H4O6 आएगा प्रोडक्ट। ओके, इसमें एन फैक्टर क्या, एन फैक्टर वही रहेगा, एन फैक्टर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आयोडोमेट्री मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ki से रिएक्ट करेगा, आयोडीन प्रोड्यूस होगा, जो आयोडीन प्रोड्यूस हुआ वो आयोडीन को हम लोग हाइपो के साथ टाइट्रेट कराएंगे। तो ये एंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आयोडोमेट्री। दिस टोटल प्रोसेस इज नोन एज आयोडोमेट्री, नेम, ओनली नेम। तो नाउ ये आयोडोमेट्री जो हो रहा है इसमें हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या मोल कॉन्सेप्ट यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, फाइंड द मोलारिटी ऑफ KMnO4, फाइंड द नॉर्मालिटी ऑफ KMnO4। ठीक है, तो ये सब पूछेगा। स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितना ग्राम होगा उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग आयोडोमेट्री टाइट्रेशन कर सकते हैं। उसको Ki से रिएक्ट कराएंगे, जो आयोडीन निकलेगा उसको हाइपो से टाइट्रेट कराएंगे। अगर टाइट्रेट कराते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 oxidizing agent is equal to gram equivalent of Ki reacted is equal to gram equivalent of I2 produced in reaction 1, I2 produced in reaction 1, ये reaction 1 ले लेते हैं इसको, ये reaction 2 ले लेते हैं, that is equal to gram equivalent of I2 used in reaction 2, that is equal to gram equivalent of sodium thiosulfate hypo। ठीक है, और ये सब इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट में, लेकिन कंडीशन इज दैट एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर जो है, इसका एन फैक्टर सपोज N1 है, इसका एन फैक्टर हो गया N2 है। अगर दोनों का एन फैक्टर सेम है, अगर दोनों का एन फैक्टर सेम है, सॉरी, अगर दोनों का एन फैक्टर सेम है तो हम लोग सब का ग्राम इक्विवेलेंट सेम इक्वेट कर सकते हैं। तो इतना सारा लिखेंगे क्यों, डायरेक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 is equal to gram equivalent of hypo Na2H2O3, ये हम लोग इक्वल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई इज दैट एन फैक्टर ऑफ आयोडीन इन बोथ द रिएक्शन, माने रिएक्शन 1 में एन फैक्टर ऑफ आयोडीन, रिएक्शन 2 में एन फैक्टर ऑफ आयोडीन शुड बी सेम। अगर दोनों का एन फैक्टर डिफरेंट है तब ये हम लोग डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट अगर इक्वेट नहीं करेंगे तो हमें मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व नहीं कर सकते अगर एन फैक्टर सेम नहीं है। तो यहाँ पे एन फैक्टर सेम है कि नहीं देखते हैं, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन में सेम है कि नहीं देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आयोडीन चेंजिंग फ्रॉम 0 to -1, एन फैक्टर इज 2, ऑलरेडी यू हैव डन इट। नाउ सपोज आयोडीन ऑफ प्रोडक्ट वी आर फाइंडिंग, तो इसका एन फैक्टर कैसे होगा, कितना होगा,
हाँ, प्रोडक्ट का एन फैक्टर अगर पूछेगा तो कैसे निकालें, देखो हम अज्यूम करेंगे कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। प्रोडक्ट का एन फैक्टर अगर पूछेगा, अज्यूमिंग दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल, in real reversible or not, that is not important is that you find n factor. So assume that reaction is reversible and I2 is coming from Ki or any other source, whatever source। देखो I2 का n फैक्टर निकालना है तो हम अज्यूम करेंगे रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है मान लो तो I2 किससे आएगा, Ki से आएगा, या I2 Ki प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, I2 Ki प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें एन फैक्टर कितना है, ये 0 है, ये -1 है। ठीक है, तो ये 0 से -1, यहाँ पे तो आई नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे 0 से अगर -1 होता है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा 1 इंटू 1 मोल में 2 है इंटू 2, तो इसका भी एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका भी एन फैक्टर 2 है, दोनों का एन फैक्टर सेम है। तो दोनों का एन फैक्टर सेम है, एक्चुअली जितना मोल I2 निकलता है उतना मोल I2 यहाँ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल ऑफ I2 निकलेगा वही मोल I2 यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो अगर वही मोल I2 रिएक्ट करेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये जानते हैं हम लोग। अगर दोनों का मोल सेम है, एन फैक्टर भी सेम है, तो मोल इंटू एन फैक्टर भी सेम होगा। तो मोल इंटू एन फैक्टर अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होगा। तो यहाँ का I2 का ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट तभी सेम होगा जब दोनों का एन फैक्टर सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मोल हमेशा सेम होता है, क्योंकि जितना मोल निकलेगा वही मोल रिएक्ट करेगा ना पूरा का पूरा। हाँ, तो यहाँ पे ये याद रखो कि अगर एन फैक्टर दोनों का सेम है, हम लोग डायरेक्ट सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम मान सकते हैं। अगर दोनों का एन फैक्टर सेम नहीं है तो नहीं मानेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ से जो I2 निकला है, जितना मोल निकलेगा वही मोल यहाँ पे रिएक्ट करेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 in reaction 1 will be always equal to number of moles of I2 in reaction 2. This is always. रिएक्शन 1 का बैलेंस करने से चलेगा। अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है। अगर मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो नहीं, रिएक्शन 1 चेंज हो सकता है, रिएक्शन 2 फिक्स्ड है। हाँ, वो मैं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा। हाँ, इसके बाद मैं बताऊंगा। रिएक्शन 1 एन फैक्टर डिफरेंट है, उसका एग्जांपल मैं दूंगा। अभी इस केस में सेम आ रहा, लेकिन कुछ केसेस है जिसमें एन फैक्टर सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा, उसका एग्जांपल दूंगा इसके बाद। पहले ये समझ लो, एन फैक्टर दोनों का सेम होने से ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ये माइंड में रख लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें से जो मोल निकलेगा वही मोल इसमें रिएक्ट करेगा ना, नंबर ऑफ मोल शुड बी सेम। अगर नंबर ऑफ मोल सेम, इट इज ऑलवेज सेम, नंबर ऑफ मोल ऑलवेज सेम। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, इसका इसका एन फैक्टर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा ना। सही है कि नहीं। देखो कोफिशिएंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जितना I2 निकलेगा वही I2 यहाँ रिएक्ट करेगा, कोफिशिएंट कुछ भी हो। नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा यूज होगा ना, सेम कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन के बाद जो आयोडीन निकला वही तो आयोडीन रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, सेम आयोडीन रिएक्ट कर रहा है,
तो मतलब वही आयोडीन रिएक्ट करेगा। कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, ये दोनों का कोफिशिएंट सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मोल हमेशा सेम रहेगा। इक्विवेलेंट सेम नहीं होगा, इक्विवेलेंट कभी सेम हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है। अगर दोनों का एन फैक्टर सेम होगा तो इसका मोल इंटू एन फैक्टर तो इक्विवेलेंट आ गया, इसका मोल इंटू एन फैक्टर इसका इक्विवेलेंट आ गया। अगर एन फैक्टर दोनों का सेम है तो मोल इंटू एन फैक्टर भी सेम होगा, तो मोल इंटू एन फैक्टर सेम होगा तो इक्विवेलेंट सेम होगा, इक्विवेलेंट सेम होगा तो हम लोग ये जो इक्वेशन नीचे लिख रहे हैं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका इक्विवेलेंट हाइपो का इक्विवेलेंट से समान है, हम डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन का हाइपो के साथ टाइट्रेशन, ये आयोडीन का हाइपो के साथ जो टाइट्रेशन कर रहे हैं, ये टाइट्रेशन को हम लोग आयोडीमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KI से रिएक्ट किया या कोई भी रिएक्शन हो रहा है बाय सम मींस I2 प्रोड्यूस हो रहा है, जो I2 प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग हाइपो के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, तो ये एंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोडोमेट्री। ठीक है, क्लियर है? अभी हम लोग कुछ केसेस लेंगे, एग्जांपल लेंगे जिसमें ये टाइट्रेशन यूज हो रहा है, और ऐसे भी लेंगे जिसमें एन फैक्टर दोनों का सेम है, ऐसे भी लेंगे जिसमें एन फैक्टर दोनों का सेम नहीं है। ओके, तो एक केस ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज में चल रहा हूं। ओके, तो इसका अटैचमेंट में भेज दूंगा बाद में, अगर लिख रहे हो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुड आई गो टू नेक्स्ट पेज? हाँ हाँ हाँ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ तो नहीं, इधर परसेंटेज रहेगा नहीं तो स्ट्रेंथ रहेगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा, नहीं तो परसेंटेज वेट बाय वेट, वो करके देखो आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, एक हम रिएक्शन कर रहे हैं, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, ले लेते हैं हम लोग कोई एक रिएक्शन I2O5 आयोडीन पेंटॉक्साइड, I2O5 रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा, ये रिएक्शन वन ले लेते हैं, इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट होगा CO2 प्लस I2। तो I2O5 को CO से रिएक्ट करेंगे, CO2 प्लस I2 होगा। अब यहाँ से जो I2 निकला, वो I2 जो को हम लोग टाइट्रेट करेंगे हाइपो सोल्यूशन से, Na2H2O3। तो इसको हाइपो सोल्यूशन से जब टाइट्रेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा Na ओके प्लस Na प्लस Na2S4O6, ये आएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर बैलेंस करोगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, बाकी हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे अगर एन फैक्टर I2 का देखोगे, सेकेंड रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो रिएक्शन सेम है। इसका एन फैक्टर कितना था, इसका एन फैक्टर कितना था, याद है? ये तो कर लो, इसका 2 था, इसका 1, इसका 2 था। अब यहाँ पे इस आयोडीन का एन फैक्टर देखो, हाँ, ये
ये आयोडीन का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? हम अज्यूम करेंगे रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन रिवर्सिबल अज्यूम कर लिए। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल अज्यूम किए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका कितना है? +5। तो 0 से +5 कितना चेंज हुआ? ये हो गया 5 चेंज हो गया 5। एक मोल में 2 एटम है तो 5 × 2 10 होगा। इसमें इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर डिफरेंट है। तो अगर लिखोगे सर, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2O5 अभी ठीक है? हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो। हाँ, रुक जाओ, मैं फिर नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। तो अभी आया? नाउ स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, तो ये देखो, तो इस केस में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2O5 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 नहीं बोल सकते हो, गलत है। यहाँ पे दोनों इक्वल कर नहीं सकते, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर डिफरेंट है। हाँ हाँ, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2O5 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO, ये लिख सकते हो, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन रिएक्शन 1, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन रिएक्शन 2, I2 इन रिएक्शन 2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो लिख सकते हो। लेकिन इसका और इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या इक्वल होगा? बताओ। दिस नॉट इक्वल टू दिस, ये दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इसके साथ इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 इन रिएक्शन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 इन रिएक्शन 2, ये हमेशा होगा। अगर नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम है, इसका मोल मान लो x हो गया, इसका मोल भी x होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन रिएक्शन 1 क्या होगा? रिएक्शन 1 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा 10x। होगा कि नहीं बोलो? इसका एन फैक्टर 10 है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन रिएक्शन 2 क्या होगा? इसका एन फैक्टर 2 है तो ये 2x होगा। अब क्या 10x इज इक्वल टू 2x होगा क्या? तो x कैंसिल हो गया, मतलब 10 इज इक्वल टू 2। एक्सेप्टेड? नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर एन फैक्टर दोनों का सेम नहीं होगा तो हम इक्विवेलेंट को इक्वेट नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट को इक्वेट कर सकते हैं सेम बिटवीन सेम रिएक्शन, मतलब सेम रिएक्शन में इक्वेट कर सकते हैं। अगर एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन जंप करना है, हम डायरेक्टली उसको इसको डायरेक्ट करना है, जल्दी करना है, क्वेश्चन एक लाइन में आंसर निकालना है, तो इस केस में नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्यों नहीं होगा? अब अगर नहीं होगा, ठीक है, बात ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन फिर उसका सोल्यूशन क्या है? कब कैसे होगा फिर? हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन? तो इसको मोल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व। हाँ, तो क्या करो, इसका इक्विवेलेंट आ गया, इस इक्विवेलेंट से मोल कर दो, मोल आ गया, ये मोल से ये मोल कर दो, ये मोल से इक्विवेलेंट करो। तो इक्विवेलेंट प्लस मोल करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका दो मेथड है। अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो उसको क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट प्लस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट दोनों मिला के सॉल्व कर सकते हो। इसमें बोलेगा I2O5 निकालना है,
I2O5 निकालने के लिए बोलेगा। ओके, या इसको स्टार्टिंग से मोल कॉन्सेप्ट ही करो, पूरा प्योरली 100% मोल कॉन्सेप्ट से करो। हाँ, ये आसान रहेगा, सब आसान है। देखो मेन चीज है कि किसमें कौन मास्टर है, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कौन सा अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट को खाली मोल कॉन्सेप्ट से अच्छा लगता है, वो कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या है, मोल प्लस इक्विवेलेंट करते हैं। यहाँ पे तो 100% इक्विवेलेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, इसका रिएक्शंस करना है। मैंने एग्जाम में डिफरेंट रिएक्शंस कैसे आएगा वो समझना है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझना है। और इसमें क्वेश्चन दो प्रकार का हो सकता है, एक में एन फैक्टर सेम है, एक में एन फैक्टर क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो एन फैक्टर सेम होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट से कर लेंगे। अगर इक्विवेलेंट से सॉल्व हो रहा है तो मोल कॉन्सेप्ट से करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आराम से सॉल्व हो सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कम टाइम में हो जाएगा। ओके, तो अगर मोल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हो रहा है तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे। अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा है तो हम लोग इधर मोल कॉन्सेप्ट से करेंगे, या मोल कॉन्सेप्ट प्लस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट दोनों मिला के करेंगे। इज दैट क्लियर? टेल मी। तो करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जो कि तो मैं नेक्स्ट पेज में चलूं, ये लिख लिया सब लोग? तो मैं और एक रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद उसका एक क्वेश्चन करेंगे। और एक ये मैंने बताया, एक I2O5 का, एक केमेनोफोर का बताया। अब मैं तीसरा रिएक्शन बताऊंगा, आयोडीमेट्री टाइट्स। तीसरा रिएक्शन है, हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट का हम लोग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, Ki से रिएक्ट कराएंगे। तो कॉपर सल्फेट को Ki से रिएक्ट कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, इसका प्रोडक्ट आता है क्यूप्रस आयोडाइड। कॉपर रिड्यूस हो जाता है क्यूप्रस आयोडाइड, लेकिन वो डाइमरिक फॉर्म में रहता है, तो Cu2I2 लिखना है, क्यूप्रस आयोडाइड। कॉपर रिड्यूस होता है, आयोडीन ऑक्सीडाइज होता है, तो आयोडीन देता है I2। मतलब I-1 से I0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर +2 से +1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, और पोटेशियम सल्फेट मिलके K2SO4 आता है। ये होता है प्रोडक्ट उसका। तो कॉपर रिड्यूस हुआ, आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो कॉपर 2 है, इसको बैलेंस कर ही लेते हैं, 2 हो गया, और आयोडीन 2 है, और इसमें 2 4, तो 4 कर दो इसको, तो 4 करके इसको 2 कर दो, बस बैलेंस हो गया। अब कॉपर सल्फेट का अगर एस्टिमेशन करना है, कॉपर सल्फेट का अगर एस्टिमेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को Ki दे देंगे। Ki देने से क्यूप्रस आयोडाइड, आयोडीन निकलेगा। जो आयोडीन निकला, अब वो आयोडीन को क्या करेंगे, हम हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3 से टाइट्रेट कराएंगे। तो इससे टाइट्रेट कराने से प्रोडक्ट क्या आता है, Na प्लस Na2H4O6, ये प्रोडक्ट आता है। तो ये जब प्रोडक्ट आएगा, अभी हम देख लेते हैं एन फैक्टर सेम है कि नहीं। अगर एन फैक्टर सेम है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। यहाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे I2 I माइनस हो रहा है, यहाँ पे तो आयोडीन कहीं नहीं है, I2 से I माइनस, मतलब एन फैक्टर 2 है। तो दोनों का एन फैक्टर सेम है। अगर एन फैक्टर सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ki
reacted, not total, is equal to gram equivalent of iodine in reaction 1 is equal to gram equivalent of iodine in reaction 2 is equal to gram equivalent of hypo. तो इतना क्यों लिखना है? क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, एग्जाम में तो हाइपो का तो ये रीडिंग देगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे और अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन में पूछेगा कॉपर सल्फेट के बारे में, कॉपर सल्फेट का परसेंटेज कितना है और कॉपर सल्फेट का स्ट्रेंथ कितना है, कॉपर सल्फेट का मोलारिटी कितना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, Cu2I2 एग्जिस्ट करता है डाइमर में, कुछ कुछ केसेस। मर्क्यूरस आयोडाइड ये भी डाइमर में एग्जिस्ट करता है। मर्क्यूरस मतलब Hg+, आयोडाइड मतलब I-। हम लोग AgI लिख सकते हैं, लेकिन ये नेचर में Hg2I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जो एक्सपेरिमेंटल है उसको हम ट्रूथ मानेंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट से जो डाइमर होता है उसको वैसे ही लिखना है फॉर्मूला में। ओके, तो क्वेश्चन लिखो 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर ओर, sample of copper ore is converted is converted is converted into CuSO4 solution, into CuSO4 solution. The resulting solution is acidified. The resulting solution is acidified. Resulting solution is acidified and excess of Ki is added. Excess of Ki is added. The liberated I2 required. The liberated CuSO4 solution. The resulting solution is acidified and excess of Ki is added. And the liberated I2 required the liberated I2 required 0.248 gram 0.248 gram Na2H2O3 dot 5 water. Okay, for complete reaction. For complete reaction, find percentage of copper in the ore. Find percentage of copper in the ore. ठीक है, ओर में कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, हम लोग
सल्फर 32। सोडियम थाइसल्फेट 5 वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 248 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 248। CuSO4 का वेट 0.5 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, वो इम्प्योर है। वो तो ओर है ना, ओर में क्या 100% प्योर रहता है क्या? इम्प्योर है। तो इसमें देखो, ये क्वेश्चन में पहले देखो एन फैक्टर सेम है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थाइसल्फेट। ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थाइसल्फेट कितना है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? एस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। तो इसका वेट कितना दिया? 0.248 दिया। मॉलिक्यूलर वेट उसको 5 वाटर लेके 248 आएगा। इनटू एन फैक्टर इसका कितना है? सोडियम थाइसल्फेट का 1 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट का आ गया। कितना आया? नहीं नहीं, 0.8 क्यों होगा? 0.8 कहां से आया? तो समझ में आएगी नहीं क्वेश्चन? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इतना आया। तो ये कितना आ रहा है? 0.248 बाय 248 कितना आ रहा है? 10 टू द पावर -3 ना। डायरेक्ट, क्योंकि इसका एन फैक्टर सेम है ना यहाँ पे। हाँ, ऊपर वाला रिएक्शन हो रहेगा ना। 0.08 आ रहा है। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट जो है, तो कॉपर सल्फेट का ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। तो कॉपर सल्फेट का मोल कितना आएगा? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर कितना है इसका? बोलो। सॉल्ट। अच्छा ठीक है, तो ऐसे मत करो। इसको इक्विवेलेंट से ही कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट से करेंगे। तो कॉपर सल्फेट आ गया। कॉपर सल्फेट का ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर होगा। सही है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर भी इतना ही आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आया 10 टू द पावर -3, क्योंकि कॉपर से कॉपर सल्फेट बना, कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है, तो इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर जो है वो 10 टू द पावर -3 हो गया। अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर 10 टू द पावर -3, देन वेट कितना होगा?
तो ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है बोलो? weight by molecular weight into n factor is equal to 10 to the minus 3. हाँ, ये वेट बाय मॉलिकुलर वेट इसका कितना आएगा? कॉपर का मॉलिकुलर वेट कितना होगा? 63.5। कॉपर का ना, हम खाली कॉपर का ले गए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉपर ना, परसेंटेज ऑफ कॉपर पूछ रहा है। सो 63.5 एन फैक्टर 1 लेंगे इसका, क्योंकि कॉपर कॉपर सल्फेट जो है तो इसमें एन फैक्टर 1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका? इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। अच्छा, कॉपर इसका देखते हैं। कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कॉपर सल्फेट जो है कॉपर 2 प्लस चेंजिंग टू कॉपर प्लस 1, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस 1 में चेंज हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बोलो? 2 प्लस 1 प्लस में चेंज हो रहा है, 1 1 इंटू 1, ठीक है। हाँ हाँ, 12.7 सही है, सही आंसर है। तो कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर 1 होगा। हाँ, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, वही वही उससे मैं कर रहा हूँ फिर। तो कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर 1 ले लो। क्यों लेंगे? क्योंकि कॉपर का +2 से +1 हो रहा है, तो +2 से +1 हो रहा है, चेंज 1 हो रहा है, एक मोल में 1 ही कॉपर है, तो 1 इंटू 1। हाँ हाँ, 12.7 सही है। तो कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर 1 है। तो अगर कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर 1 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई एन फैक्टर, है कि नहीं? तो उतना ही होगा। तो कॉपर सल्फेट का मोल होगा 10 टू द माइनस 3। अगर कॉपर सल्फेट का मोल 10 टू द माइनस 3 है, कॉपर का भी मोल उतना होगा कि नहीं बोलो? तो कॉपर का मोल भी उतना होगा। अगर कॉपर का मोल उतना है तो कॉपर का वेट कितना होगा? कॉपर का वेट होगा उसका मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, कितना है? तो कितना आ रहा? एस एस, तो इतना ग्राम आएगा उसका, 0.0635 ग्राम आएगा। ओके, 0.0635 ग्राम आ रहा है वेट ऑफ कॉपर। तो कितना ग्राम से? 5.5 ग्राम से इतना आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द ओर कितना होगा? तो वेट ऑफ प्योर कॉपर 0.0635 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 12.7%। तो समझ में आया कि नहीं बोलो? नहीं नहीं, उससे मैंने करा नहीं, मोल से कर दिया ना। तो इसको इसको लेने से चलेगा, नहीं लेने से चलेगा? इसको मत लो। तो कॉपर से कॉपर सल्फेट बना है, कॉपर गिव्स यू कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जितना मोल होगा कॉपर का भी उतना ही मोल होगा ना, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। कॉपर सल्फेट का मोल निकाल दो, कॉपर सल्फेट का मोल आ गया, जितना कॉपर सल्फेट का मोल उतना ही कॉपर का मोल, कॉपर का मोल आ गया, तो फिर उसका वेट निकाल दो। ठीक है, इज इट?
CuSO4 का एन फैक्टर 1 है। CuSO4 का नहीं नहीं नहीं, टू टू कहाँ था? CuSO4 किस में चेंज हो रहा है उसको देख के करना है। Cu2+ से Cu+1 चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर 2 से 1 मतलब चेंज हो रहा है 1, तो एन फैक्टर इज 1 इंटू कॉपर में 1 है, तो 1 इंटू 1। ठीक है, इज इट क्लियर? तो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बोलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई एडवांस का क्वेश्चन है। दिस इज जेई एडवांस, ओके। क्वेश्चन ये है 0.1 ग्राम of KiO3 is treated with is treated with excess of Ki, excess of Ki, okay, and अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर मैंने बताया क्या नहीं बताया? हाँ, वो बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा, उसको बता देंगे, उसके बाद ये सॉल्व करना। 0.1 ग्राम of KiO3 is treated with excess of Ki, and the liberated iodine is treated with Na2H2O3 with में रिक्वायरिंग। तो ये क्वेश्चन मेरा याद है, तो मैं requiring 45 ml to complete 45 ml to complete the reaction. Find the molarity of hypo solution, okay। इसमें है in acidic medium in presence of HCl। तो ये क्या होगा, रिएक्शन दिया, रिएक्शन क्वेश्चन में दिया KiO3 प्लस Ki प्लस
HCl क्या होगा, KCl प्लस I2 प्लस वाटर, और इसमें जो I2 निकला, I2 प्लस Na2H2O3, ये दे रहा Na2H4O6 प्लस NaI। ओके, तो ये इक्वेशन दिया है, तो इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये बताओ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करें या मोल कॉन्सेप्ट से करें। नहीं नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन है वो आयोडीन 0 से -1 हो रहा है और 0 से +5 भी हो रहा है। यहाँ पे +5 भी हो रहा है, -1 भी हो रहा है 0 से। इस इसका एन फैक्टर है 5/3, इसका एन फैक्टर है 2, दोनों का एन फैक्टर। हाँ, वही मैं बताऊंगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का है। इसका कैसे 5/2 आया, इसके लिए नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज जाऊं, क्वेश्चन लिख लिए तो अभी देखो, I2 से I माइनस हो रहा और IO3 माइनस हो रहा, इसका एन फैक्टर देखना है। ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने बताया था ना, if same element if same element undergoes both oxidation and reduction is known as disproportionation। तो इसका एन फैक्टर का फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूला है। ओके, इसका एन फैक्टर का एक फॉर्मूला है 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर फॉर्मूला है ये, एन फैक्टर इसका है ये, n इज इक्वल टू एन फैक्टर। n1 n2 क्या है, n1 and n2 are n factor of 2 half reaction। तो 2 हाफ रिएक्शन मतलब ये तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है ना, ये हाफ रिएक्शन नहीं है। तो इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दो, I2 से I माइनस, एक हाफ हो गया, और एक हाफ डिवाइड कर दो I2 से IO3 माइनस। ठीक है, तो इस हाफ में इसका एन फैक्टर कितना है, ये 0 से -1 हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 0 से -1 हो रहा, तो 0 से -1 कितना चेंज हुआ, 1 चेंज हुआ, लेकिन एक मोल में 2 है, तो एन फैक्टर 2। इसका एन फैक्टर देखते हैं, N2।
ये 0 से I2 का रिएक्टेंट का होता है ना एन फैक्टर, तो 0 से +5 हो रहा, तो ये 0 से +5 हो रहा, तो 10 होगा, एन फैक्टर 5 इंटू 2 10। तो इसका ये फॉर्मूला से आता है 1/n इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/10। तो ये पैरेलल रिएक्शन रेजिस्टेंस का होता है, तो ये होगा कितना 5/3 होगा, तो n होगा 5, हाँ n होगा 5/3, तो इसका एन फैक्टर 5/3 होगा, ये फॉर्मूला से आता है। नेक्स्ट क्लास में याद करो, इस टाइप का मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा उससे, ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? हाँ, ट्यूसडे होगा ना, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे करेंगे। तो ये हो गया, अभी टाइम हो गया तो इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ क्वेश्चन। आप देखो, दोनों का एन फैक्टर सेम नहीं है क्या? दोनों का एन फैक्टर सेम नहीं है, यहाँ पे 5/3, तब मोल कॉन्सेप्ट यूज करो, तो मोल कॉन्सेप्ट यूज करो। मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ KiO3 और हाइपो, ये दोनों दिया है, तो इसको फैक्टर लेबलिंग से कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक टाइट्रेशन नहीं है, ये आयोडोमेट्री में फैक्टर लेबलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो I2 प्रोड्यूस हो रहा है वही रिएक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KiO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2H2O3। दो इक्वेशन है, दो ब्रैकेट है, तो उसको कई मेथड से कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड से कर सकते हैं। मैं एक मेथड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाओ मेरे को, और दो मेथड से मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ। तो फैक्टर लेबलिंग से मैं कर रहा हूँ, फैक्टर लेबलिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, तो दोनों का कनेक्टिंग है I2, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, तो 1/3 और 1/2 ऐसे करना, तो 1/3 1/2, ये दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, क्योंकि IO3 दिया है, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम मोलरिटी ऑफ हाइपो पूछ रहा है, तो ये दोनों का रिलेशन है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KiO3 क्या है 0.1, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे 214 आएगा, इज इक्वल टू 1/6। फैक्टर लेवलिंग कर रहे हैं ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, तो 1/3, फिर यहाँ से ये जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 2 है, 1/2, ओके। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइपो, हाइपो का मोल कितना है, हाइपो का मोल मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000, ये हाइपो का मोल, तो मोलारिटी कितना आएगा, 1000 इधर मल्टीप्लाई करो 100/214 इंटू 6/45, ये होगा आंसर। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। मैं फैक्टर लेवलिंग से कराया, मैं टाइम हो गया इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मेरे को याद दिलाओ, मैं मोल कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, ये फैक्टर लेवलिंग से हुआ, मैं मोल कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, और एक मेथड से भी करा सकता हूँ सेम क्वेश्चन, तुम लोग खुद से भी ट्राई करो, ओके, राइट देन। हाँ, हाँ ट्यूसडे 12 to 2, और फ्राइडे को भी मैं कराऊंगा क्लास एक्स्ट्रा, ठीक है, ओके, ठीक है देन, थैंक यू, बाय।